Good morning again, the third BHM students of Homeopathic Medical College. We are discussing about the mental disease from the organon of medicine, and we are following the aphorisms of organon of medicine to make our conception very clear. What exactly Hahnemann has told regarding mental diseases. So this is our continuation lecture. In the last lecture we have discussed about the third type of mental disease, aphorism number 224. Now we are discussing about the another or last fourth type of mental disease. We are going through aphorism number 225, and it will be continued to aphorism 226 and 227. Now, as we have to just have a remembrance that the type of mental diseases are: number one, that is the corporeal to mental. Next is that is the mental disease which resembles some sort of acute diseases, acute conditions. Number three, the mental diseases which are doubtful in origin, whether it is arising from corporeal conditions or any sort of false education, bad practices, corrupt morals, neglect of mind, superstition, ignorance, etc. And lastly, these are the four type of mental disease where the mental disease are developed due to some emotional causes. Very commonly we can see that मेंटल पेशेंट जैसे कि पागल हो गया, तो कोई ना कोई जगह में कोई शॉक लग गया, कोई ना कोई जगह में कुछ ऐसा कुछ खबर से उसके बाद से इनका जो माइंड है ये डिसबैलेंस हो गया, तो इस टाइप का मेंटल पेशेंट्स हम लोग को दिखता है. So first of all, let us read aphorism number 225 and from this organon of medicine. This organon of medicine, the book of the aphorisms, written by Hahnemann, translated by Adi Dajan and William Borick in the 5th and 6th edition. We can go through the translation of O'Reilly also, or we can go through the translation of B.K. Sarkar. All these translations are the same, except O'Reilly is something different in the 6th edition. So let us go to the aphorism 225. There are, however, as just been stated, certainly a few emotional diseases which have not merely been developed into that form out of corporeal diseases, but which is an inverse manner, the body being just slightly indisposed, originate and are kept up by emotional causes, such as continued anxiety, worry, vexations, wrongs, and the frequent occurrence of great fear and fright. This kind of emotional diseases in time destroys the corporeal health often to a great degree. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसे एक इमोशनल डिजीजेस होते हैं जो कि कॉर्पोरियल मतलब हेल्थ को, बॉडीली हेल्थ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. और जैसे कि हम लोग इसको मेंटल डिजीज के अंतर्गत लिया, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम मेंटल सिचुएशंस, मेंटल सिम्टम्स एंड कंडीशंस आल्सो. तो what is this? What are the causation of this? We see that this is written in organon of medicine: continued anxiety, worry, vexation, wrongs, and frequent occurrence of great fear and fright. Students, these are very important, and we can see almost everybody are under some sort of stress. And you see that sometimes जब ये अपना ब्रेन जो है इसको सहन नहीं कर पाता, तो कोई ना कोई ऐसे रिएक्शन हो जाता है जहाँ पे या तो आप देखोगे कि वी कैन सी मेनी टाइप्स ऑफ पैरालिटिक टेंडेंसीज, जो इतना बहुत स्ट्रेस में आ गया, फिर सेरिब्रल अटैक हो गया, बीपी बढ़ गया, बोलते नहीं. तो ये सारे चीज़ जो है, तो एज बिकॉज द लेक्चर इज फॉर द BHM स्टूडेंट्स, मैं इसको इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ये जो स्ट्रेस और टेंशन से बीपी बढ़ता है, सबको पता है. ये स्ट्रेस और टेंशन कहाँ है? माइंड में. और बीपी कैसे होता है? इट इज़ द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द आर्टेरियल वॉल्स, वेसल्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो माइंड से, तो मेंटल से ये कॉर्पोरियल में आ रहा है. दूसरी बात है कि
ऐसे जो कंडीशंस है, these are due to some emotional causes, इसको आप देखोगे कि very common in all the many patients, and we will get many in लगभग almost 80% केसेस में कोई ना कोई बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ मेंटल स्थिति होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि देखो एकदम बच्चा से यू कैन सी दैट it is not a very right practice to put a baby or we can say that the child in too much pressure or fear or discipline of the schools। आज का डेट में एक जो छोटा सा बच्चा है उसका स्कूल का जो बैग है, ये बैग उस बच्चे से ज़्यादा भारी है। ये एक रॉन्ग प्रोसीड्यूर है, ये हम लोग अपने देश के बच्चे को एक गलत दिशा में दे रहे हैं। दे मस्ट स्टडी, दे मस्ट नो द डिसिप्लिन, दे मस्ट नो एवरीथिंग, बट एक्सेसिव प्रेशर जब होता है, हमने ये बहुत जगह में देखा हुआ है, बहुत सारे पेशेंट्स में देखे हुए हैं कि द चाइल्ड इज बिहेविंग समव्हाट इन अ वेरी एबनॉर्मल मैनर। ऑटिस्टिक बेबी तैयार हो रहा है, ऐसे कुछ जिद्दी टाइप का बेबी तैयार हो रहा है, अजीब टाइप के मतलब क्रूएल टाइप का टेंडेंसीज बन रहा है छोटे से बच्चे में तो ऐसे कुछ कंडीशन जो है ये क्यों अराइज हो रहा है? बिकॉज द एक्सेसिव स्ट्रेस जो है, कहीं से ये प्रेशर आ रहा है, कहीं ट्यूटर से, स्कूल से, या पेरेंट के जो अधूरे सपने हैं ये ऊपर में, ये मेरा बच्चा सबसे बेस्ट होगा है, तो आजकल सोशल मीडिया में सबको एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे करके माई चाइल्ड में बिकम फेमस है। तो ये होता है, बट it is not wrong, but still if you are doing it excessively that may create a wrong impact on the baby। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे बच्चों में हम लोग ऑटिज्म बहुत कॉमनली देखते हैं, बहुत टाइप के मेंटल स्ट्रेसेस देखते हैं। इवन यू सी दैट एक कॉमन पेशेंट्स आते हैं आजकल नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस का, नॉट ओनली अ फिजियोलॉजिकल कॉज, इसका बैकग्राउंड में उस बच्चे का मेंटल स्ट्रेस को भी आप चेक करो, रिलीज करो उसको, उनको उस बच्चे को थोड़ा बहुत काउंसलिंग करके उनका पेरेंट को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे केसेस में ठीक करने की कि लेट द चाइल्ड फ्री, उसको क्या अच्छा लगता है उसमें थोड़ा बहुत उसको खेलने दो, उसमें कुछ अगर उसको कार्टून देखना भी अच्छा लगे तो वो भी उसको करने दो, है कुछ चीज जो है उसको फ्री रखना है मेंटल। सो दिस इज, ये बच्चा जब बड़ा होगा तो ये इसका एक कॉम्पिटिटिव माइंड, कॉम्पिटिटिव नेचर, दूसरे को जैसे तैसे करके पीछा करके वो आगे बढ़ना चाहेगा, ऐसे चीज तैयार हो जाएगा तो बाद में ये कोई ना कोई क्राइम भी कर देगा खुद को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे टेंडेंसीज जो है ऐसे ये गलत है। तो यहाँ पे वी सी दैट इस जगह से तो कहाँ से ये शुरू हो रहा है, एक अननेसेसरी एक स्ट्रेस उस बच्चे के ऊपर आ रहा है जो कि एनवायरनमेंट उसको दे रहा है। ऐसे ही अगर थोड़ा सा बड़े लेवल में देखा जाए कि एक्सपेक्टेशंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस ये स्टूडेंट्स के ऊपर होता है, कोई फास्ट आएगा, सेकेंड आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना क्या। तो ये भी एक काइंड ऑफ एक एग्जांपल है कि ऐसे स्ट्रेस स्टूडेंट्स के ऊपर होता रहता है। कई बार ऐसा है कि सर्विस में जाके देखो कि जो बॉस है वो इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है और वो बेचारा मतलब जरूरत से ज्यादा प्रेशर ले रहा है। अगर नौकरी चला जाएगा तो फिर घर में कैसे पैसे, तो इस टाइप ऑफ अनअवॉइडेबल कोई सर्कमस्टेंसेस हो जाता है जिसका विक्टिम हो जाते हैं लोग, एंड अल्टीमेटली ही बिकम्स मेंटली डिजीज एंड इट मे टर्न इनटू हिज कॉर्पोरियल स्टेट आल्सो। देयर आर इमोशनल कॉजेस, अदर एग्जांपल्स आल्सो, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं डिसअपॉइंटेड लव, even any type of breaking of the relationship and etc. So these are also a type of impact which can be on the mental sphere। और बहुत सारे शॉक, एनी टाइप ऑफ डेथ ऑफ एनी नियर एंड डियर वंस, तो कोई भी टाइप का मेंटल जो इमोशनल कॉजेस है, इस इमोशनल कॉज के कारण ऐसे डिजीज, दिस टाइप ऑफ मेंटल डिजीज ये होता है। दिस इज एफोरिज्म नंबर 225. Coming to aphorism number 226, it is only such emotional diseases as these which are first engendered and subsequently kept up by the mind itself
that while they are yet recent and before they have made a very great inroads in the corporeal state, maybe by means of psychical remedies such as a display of confidence, friendly exhortations, sensible advice, and often by a well disguised deception, the rapidly changed into a healthy state of mind, and with appropriate diet and regimen seemingly into a healthy state of the body also. तो इस जगह पे पहले जो सबसे इनिशियल जो ट्रीटमेंट हैनीमैन सर ने बताया ये है कि आपको उनसे एक कॉन्फिडेंस डालना है, एक फ्रेंडली बिहेव डालना है, उनके अंदर का मन के अंदर का जो एंग्जाइटी जो डर है इसको हटाना है और इससे उनका मेंटल स्थिति बेटर में आएगा। और प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हम लोग के नॉर्मल खाने में नहीं मिलता, उसको ध्यान देना है और उस हिसाब से उनका डाइट को चेंज करके उनका बॉडी को भी हेल्दी बनाना है। सो दिस इज द इनिशियल ट्रीटमेंट अभी भी कंटिन्यूड है इन एफोर्जन नंबर 227, बट द फंडामेंटल केस 227, but the fundamental cause in these cases also is a soric miasm. So as we know that each and every mental disease has a miasmatic background, and the sora miasm is in action in all the type of mental disease. So there is a soric miasm which was only not yet quite near its full development, and for security's sake the seemingly cured patient should be subjected to a radical anti-soric treatment. I repeat, anti-soric treatment, in order that he may not again, as might easily occur, fall into a similar state of mental disease. तो ऐसे में जैसे कि शुरू में इनके साथ जो ऐसे पेशेंट पे जो हम लोग को अच्छे से फ्रेंडली एडवाइस देना है, उनका कॉन्फिडेंस को वापस लाना है, एक सेंसिबल फ्रेंडली एक्सोर्टेशंस के साथ, एक अच्छा बिहेव के साथ उनका माइंड को सेट करना है। इसके साथ साथ एंटीस्कोरिक मेडिसिन देने से इनका ये जो मेंटल कंडीशन है बाद में फिर ये वापस नहीं आएगा। इट कैन बी completely cured by the combination of these three things. One is proper friendly exhortations, indulging the confidence within the patient and having the good sensible advice. Along with that, for the physical we will give the proper diet, will change the proper diet, the proper requirement of the elements within the body, and not but last but not the least, it is the anti-soric treatment which is very required for the completion of this treatment of this mental disease. So these are the this is the fourth type of mental disease. We'll go you must go through aphorism number 225, 226 and 227. Okay, now there is a question which comes up to this much we have not reached up to aphorism number 230. जितना हमने इधर देखा है एफोर्जन नंबर 210 से लेके 227 तक, एक के बाद एक ईच एंड एवरी एफोर्जन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन एक आंसर अपन बना सकते हैं। एक छोटा सा नोट है, व्हाट आर मेंटल डिजीज, डिफाइन मेंटल डिजीज, एंड व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ मेंटल डिजीज एंड डिस्क्राइब देयर ट्रीटमेंट। थैंक यू, विल मीट अगेन।